Respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, HM Ma'am, my learned colleagues, and dear students, a very good afternoon to you all. First of all, I welcome you all to the celebration of 150th birth anniversary of Gandhiji. As we all know that Gandhiji is known as the father of nation. He has played a key role in the independence of our country. He has inspired many with his teachings of non-violence. 2nd October is observed in the world as the International Day of Non-Violence. Gandhiji was not only a great leader, but he was also a social reformer, freedom fighter, and above all, a great Mahatma. To celebrate the 150th birth anniversary of that great personality, we are conducting many activities such as Sarvodharma prayer, writing of 150 quotes of Mahatma Gandhi, essay writing on the topic Be the Change You Want to See in the World, cleanliness drive, expressing teachings of Gandhiji through pictures and slogans, webinar on life and teachings of Gandhiji. So without taking too much time, I invite and welcome you all to be the part of this celebration ahead. Thank you. Gandhi, the father of our nation, the charismatic personality who gave visionary guide to Indian national movement and pondered it into Indian freedom struggle, which consequently proven in Indian independence. Gandhi, the man of liberal ideologies, nonetheless crafted by Indian holy scriptures like Gita and Vaishnavism thoughts. Moreover, the ideologies possessed by him are drafted in various books, namely Hind Swaraj, My Experiments with Truth, etc. At the same time, Gandhiji was also conscious about prevailing socio-unbalanced in society, or say caste system. According to him, inequality in the society was a major hurdle in attaining independence. That's why he acronymed the clarion of Swaraj and Ramraj. Conclusively, Gandhiji was one of the true weaver of Indian thread that led foundation of our beloved India and also guiding us in even today areas of various sectors. कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। प्रधानाचार्य जी एवं सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुष्का कुमारी है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। अहिंसा परमो धर्म को नींव बनाकर विभिन्न आंदोलनों के जरिए इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने वाले महान महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने में व इस देश को उज्ज्वलता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महान महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी तथा माताश्री का नाम पुतलीबाई था। जियो ऐसे जैसे कि आप कल मरने वाले हो, सीखो ऐसे जैसे कि आप हमेशा जीवित रहने वाले हो। गांधी जी का शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, पर उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारतीय शिक्षा सरकार के नहीं अपितु समाज के अधीन हो। इसीलिए वह भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री भी कहा करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान रहा है। भारत का हर नागरिक शिक्षित हो, उनकी यही इच्छा थी। गांधी जी का मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। संक्षेप में कहा जाए तो गांधी जी ने अपनी शिक्षा संबंधित विचारधारा से बालकों को आत्मनिर्भर बनने पर बल दिया है। उन्होंने शिक्षा प्रक्रिया को दैनिक क्रियाकलापों एवं मूल आवश्यकताओं से जोड़ने का नवीन प्रयास किया है। गांधी जी का मानना था कि मेरे प्रिय भारत में बच्चों को 3S शिक्षा अर्थात हेड हैंड हार्ट की शिक्षा दी जाए। शिक्षा उन्हें स्वयंनीय बनाए व वो देश को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। धन्यवाद। Hello everyone. On the occasion of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, I, Vyapti Jha of class 12th, is here to speak my views on Mahatma Gandhi and his teachings. Mahatma Gandhi has said, "My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God and non-violence is the means to get it." We have learned a lot from Mahatma Gandhi's life.
The most important thing that he has taught us is self-dependence. We all know that he always used to do his works on his own and he was never dependent on someone else. Mahatma Gandhi had said, "When I am disappointed, I remember that the path of truth and love always trumps throughout the history. There are so many dictators and murderers, and they may seem invisible for some time, but they eventually collapse. Always think about it." Mahatma Gandhi hated violence. He never wanted to hurt people, kill people and shed blood. And he has always led a life as plain as anyone else. At last, I would like to conclude with another moral value that Mahatma Gandhi has given us on humanity. He said, "Never lose faith in humanity. Humanity is like the ocean. If a few drops of the ocean are dirty, then the ocean does not become dirty." Thank you. महात्मा गांधी के राजनीतिक पहलुओं पर बहुत कुछ विचार हो चुका है। अब मैं आपको उनके कुछ शैक्षणिक पहलुओं पर विचार करना चाहूँगा। अब आप देखिए उनकी शैक्षिक महत्व की बातें। उन्होंने बहुत कुछ सीख हमें दी है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक उन्होंने एज ए नागरिक के रूप में हमें सिखाया है कि क्या क्या बातों को हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम एक नागरिक के रूप में सशक्त रहें, और जब हम नागरिक के रूप में सशक्त रहेंगे तो हमारा समाज सशक्त रहेगा, और जब हमारा सशक्त समाज रहेगा तो हमारा राष्ट्र सशक्त रहेगा। महात्मा गांधी देश को समग्र रूप में देखते थे, और समग्र रूप में देखने के लिए उन्होंने समाज को, व्यक्ति को एक यूनिट के रूप में देखा है। तो लीजिए उनके 10 महत्वपूर्ण सीख को हम ध्यान से सुने और उसका पालन करने की कोशिश करें। पहली सीख थी उनकी, जीवन को पूर्ण तरीके से जिएं। लीव लाइफ टू द फुलेस्ट, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ध्यान देना है, स्पीड पर नहीं। दूसरा उनका सीख था कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सत्य पर ध्यान देना है, हमेशा सत्य बोलना है, कभी हमें अपने सत्य से भटकना नहीं है। तीसरी सीख थी उनकी, परिवर्तन की शुरुआत खुद से करें, यानी परिवर्तन पर ही चलना है। चौथी सीख थी उनकी, प्रेम पर विश्वास रखना है, बिलीव इन लव। पांचवी सीख थी उनकी, थिंक बिफोर एक्ट, कार्य करने से पहले सोचे, विचार करें तब कोई कार्य करें। छठा सीख था उनका, लाइफ टू लर्न, यानी जिंदगी जीने के लिए सीखने के लिए जिंदा रहें। और सातवीं सीख थी उनकी, सकारात्मक रहें, यानी सकारात्मक रहेंगे तो हम सकारात्मक कार्य करेंगे, जैसा हमारा सकारात्मक सोच रहेगी वैसा हम काम करेंगे। आठवीं सोच थी उनकी, माफ़ करना सीखें, फॉरगिवनेस। हम फॉरगिवनेस रखेंगे तो समाज में वैमनस्यता खत्म हो जाएगी। नौवीं सीख थी उनकी, बी ट्रूथ टू योर सेल्फ, अपने प्रति ईमानदार होना, सत्य होना। और 10वीं सीख थी उनकी, केयर फॉर योर मदरलैंड, अपने अर्थ के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति सच्ची सेवा करना। ये 10 उनके शिक्षा थी। वो ये कहते थे कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है, मातृभूमि की रक्षा करनी है। वह पर्यावरण, वह पेड़ पौधे जो हमें आहार देते हैं, जो हमें जीवन देते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए अपने आप को न्यौछावर भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। हमें न्यौछावर का मतलब अपने सेवा करने की भावना का परित्याग करना होगा। इसी भावना के साथ हम महात्मा गांधी का आभार व्यक्त करते हैं और आप सबका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी सीख का हम पालन करेंगे। Namaskar, it is my great privilege to speak a few words on the birth anniversary of Mahatma Gandhi, a great statesman, great thinker, philosopher, national leader and social reformer. Mahatma Gandhi did not bring only the change in the Indian national freedom movement, but he brought a great revolution. Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd of October 1869 in a middle class family of Porbandar, Gujarat. He was an ordinary student, but he showed the signs of greatness in coming future. Mahatma Gandhi was highly influenced by Raja Harishchandra's love for truth. He practiced also the truth in his life always. He became famous when he pleaded the case of Afar Dada Abdullah and Company in South Africa. He came back to India
on 9th of January 1950 and joined Indian National Congress. The methods and principles of non-confrontation and disobedience brought a great change in the style of freedom movement, which proved that we can achieve freedom without violence. And finally, the British Empire was broken up. Poet laureate, Nobel laureate Rabindranath Tagore called him for the first time Mahatma, and he became Mahatma, from Gandhi to Mahatma Gandhi. He focused and emphasized on ethics and moral value-based education. Mahatma Gandhi advocated pure environment and cleanliness. Under his guidance, under his leadership, so many movements were started. Some of them are Satyagraha movement in 1906 in South Africa, Champaran Satyagraha 1917, Khilafat movement 1919, Civil Disobedience movement in 1930, and Quit India movement in 1942. I have to speak a lot, but the time is waste. Now, finally, I would like to pay my great homage to the father of nation with these words of great poet W.H. Longfellow. Lives of great men all remind us we may make our life sublime. We may make our life sublime. Jai Hind, Jai Bharat. हाँ, नमस्कार। आज से 150 वर्ष पहले गांधी जी का जन्म हुआ था। जब वो 46 वर्ष के थे तो 1915 में वो भारत में अस्थायी रूप से रहने के लिए आ गए और 1915 से 1947 के बीच में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका सबसे अहम थी। उन्होंने आते ही आंदोलन का तरीका बदल दिया, सत्याग्रह को महत्व दिया और आते ही चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और रॉलेट नाम का सत्याग्रह किया। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान जालियांवाला बाग में हत्याकांड हो गई, जिससे नाराज होकर गांधी जी ने भारत का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के साथ उन्होंने टर्की के खलीफा को भी शामिल किया, क्योंकि टर्की के खलीफा इस्लामिक जगत के प्रधान थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। गांधी जी के आंदोलन में अहिंसा सबसे अहम केंद्र था, इसलिए चौरी चौरा में हिंसा होने के बाद इन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया और समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़े। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने, अस्पृश्यता को दूर करके भारत से जातिवाद की जो बुराइयां हैं उसको कम करने और चरखा या कुटीर उद्योग को बढ़ावा देकर आर्थिक रूप से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इन्होंने प्रयास किए। साइमन के आते ही भारतीय राजनीति फिर से गर्म हो गई। 1929 में लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को आगे बढ़ाते हुए 1930 में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन फिर से शुरू किया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से हुआ था, जिसमें गांधी जी का डांडी मार्च सबसे महत्वपूर्ण था। इरविन के साथ समझौता करके द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन भी गए। अंबेडकर जी के साथ समझौता करके पुणे में, जिसका नाम पुणे पैक्ट है, भारतीय समाज को टूटने से बचाने का प्रयास किया, लेकिन हिटलर के आने के बाद 3-4 साल आंदोलन फिर से शिथिल पड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही भारत की राजनीति फिर से आगे बढ़ी और इसमें जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, वो गांधी जी के करो या मरो के नारे पर आधारित था। गांधी जी के आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध ने इंग्लैंड की हालत इतनी खराब कर दी थी कि अब भारत को गुलाम बना के नहीं रख सकता था। इसलिए 1947 में भारत आजाद हो गया। भारत के आजाद होने के तुरंत बाद अगले ही साल गांधी जी की हत्या हो गई, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए उनको सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। Greetings to all. Today, as we are celebrating the 150th birth anniversary of Gandhiji, I can rightly say that Gandhian principles are still alive in the society of today. Gandhiji preached truth and satyagraha, which paved
a way into the hearts of people. The world is still awestruck by the uniqueness of Gandhiji's approach. He endorsed simple living and high thinking. Gandhiji's principle of satyagraha still holds good. Gandhiji was a strategist, a genius. He could mold the movement according to the situation. He could visualize the mood of the nation and take strategic steps in a well defined way. Likewise, we must analyze our present day situation and mold the Gandhian principles according to the present times and its requirements. Gandhiji's views about sanitation, decentralization of power, women empowerment, need for basic education for all holds good. Followed presently. Self-sufficiency was something that Gandhiji emphasized on. Individuality and economic independence were the two things close to his heart. The present trends indicate the best times when both these are at its prime. Another point which was close to Gandhiji's heart was women empowerment. Today, Indian women are forerunners in every field. They have also made their international presence felt, be it space or sports. Today, we can see India in the global arena. The advancements that India has made in the field of IT, medicine, and research. Indian brains are sought after everywhere. Gandhiji forever believed that there is no better teacher than life itself. He maintained that no child can be forced to study, but should find an inclination to do so. The education of today is based on these ideas only. Environmental consciousness, moral values, interpersonal skills, community and society-oriented awareness are all inculcated in young minds through education. Yes, Gandhiji is alive and active in the modern world too. The path shown by Gandhiji still remains a valid one, only if one chooses to tread on it. An eye for an eye is not a solution. It will only worsen the situation. Peaceful coexistence, economic independence, respect for women, child-centered education, basic education for everyone, universal brotherhood are the principles that should serve as a beacon of light to guide humanity to a better world. Today, I take this opportunity to invite each one of you to follow the Gandhian principles to make this world a wonderful place to live. Thank you. महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। ये आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। इनकी पत्नी कस्तूरबा थी जिनको महात्मा गांधी जी बा के नाम से पुकारते थे। एक बार की मुझे बात याद है कि कस्तूरबा जी के साथ गई हुई थी और उस दिन उनका सफाई कर्मचारी नहीं आया, तो बहुत परेशान थी कि कैसे होगा, क्या होगा। और गांधी जी अपना अखबार पढ़ रहे थे, जब देखा घर में तूफान मच गया है तो स्वयं जो है वो सफाई करने चले गए। तो इससे हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी सफाई प्रेमी थी और आज शायद उन्हीं की वजह से हमारे भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है। तो सफाई है तो बीमारी नहीं होगी, सफाई है तो हम निरोग रहेंगे, सफाई है तो मन प्रसन्न रहेगा। तो ये सब विचार जो है गांधी जी की ही देन है। यही नहीं, शिक्षा के मामले में बुनियादी शिक्षा के वे प्रबल समर्थक थे। मैं खुद बचपन में कतली, अटेरन और सूतली, रुई हम लोग बचपन में खुद काटा जब हम पढ़ा करते थे। आज फिर देखिए बुनियादी शिक्षा की ओर हम बढ़ रहे हैं और नई शिक्षा नीति में भी इसका
समावेश किया गया है। यही नहीं, इन्होंने सत्य के अनुप्रयोग है, मुक्ति दूत है और अनेक अछूतोद्धार है, अनेक जो है रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। मुझे भी याद है हमारे पाठ्यक्रम में एक किताब चलती थी मुक्ति दूत। उसकी एक पंक्ति मेरे मानस पटल पर तैर रही है, जिन हाथों से संसार गढ़ा क्या वे हरिजन नहीं गए। कहने का तात्पर्य है जो भगवान है, जिस हाथों से जिसने सारे संसार को बनाया, क्या उन्होंने हरिजनों को नहीं बनाया? अवश्य उनको बनाया, तो फिर भेदभाव कैसा? यानी वे मानव मात्र सम धर्म सभी की समानता पर वो जोर देते थे। यही नहीं, उनके अंदर गुणग्राह्यता बहुत प्रबल थी कि वो जो भी है कहीं भी अच्छाई हो उसको वो ग्रहण करते थे। एक बार की बात है, गांधी जी से लोग कई बार सहमत नहीं होते थे, तो उनको रास्ते में लोग गाली लिख लिख करके पर्चियों पर डाल देते थे और उसमें एक आलपिन में चुभो देते थे। गांधी जी वो बंडल उठाते गालियों भरा और उसमें पिन जो होती थी उसको निकाल करके अपने कालर में चुभो लेते थे। इस प्रकार से देखने से देखिए आप कि उनके कितने अच्छे विचार थे। गालियों को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वे उनके चीज़ बेकार थी, परंतु उसमें काम चीज़ क्या थी? आलपिन। वो आलपिन को अपने पास रख लिया। कहने था आज़ादी के दौरान इन्होंने बहुत अंग्रेज़ों से जो भयंकर लड़ाई लड़ी कि एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने शस्त्र नहीं उठाया और अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, असहयोग आंदोलन के द्वारा इन अंग्रेज़ों जो सत्ता से भरे थे, उनके पास वेपन्स थे, उनके पास सत्ता थी, धन दौलत सब कुछ था, फिर भी उन्होंने बिना शस्त्र के उनको भगा दिया। ये मैं तो समझता हूँ गांधी जी जैसा व्यक्ति भविष्य में कोई ऐसा लगेगा कि इस नाम का कोई हाड़ मास का कोई पुतला था। गांधी जी की एक बड़ी विशेषता ये थी, यदि कहते हैं मैंने देखा नहीं है, मेरा जन्म उनके बाद हुआ है और उनकी मृत्यु पहले हो गई है 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी। और पहले बताते हैं कि उसने जो है उनसे आशीर्वाद भी लिया और बाद में वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे और उन्होंने उसको मार दिया था और उन्होंने राम राम कहा। तो वो राम के समर्थक थे। राम का मतलब है कि रमनते योगिना यस्मिन् सः रामा, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं वह राम है। और राम अंत समय तक वे राम, हरे राम, उनकी समाधि पर भी हरे राम लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई उनके एक गाल पर थप्पड़ मारता तो वे दूसरा थप्पड़ भी मार देते हैं, मारने के लिए अपना गाल कर देते थे। कुछ लोग हमारे साथी कहते हैं, कुछ लोग क्या बहुत लोग कहेंगे कि गांधी जी जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हमें कोई चुटकी काटे तो हम उसको थप्पड़ मारेंगे, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। परंतु अगर आप दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें कि गांधी जी जैसा जीवन कितना महान था, मान अपमान से परे था, और वह जो है देखा जाए आज के ज़माने में ऐसा व्यक्ति होना बहुत दुर्लभ है कि आदमी मर के जीना, कि भाई कोई किसी को मारे और वो रिएक्ट ना करे, ये बहुत बड़ा गुण था महात्मा गांधी में। मैं समझता हूँ ऐसे महापुरुष को हमें अवश्य याद करना है। उनकी बातों को गांधी जयंती सही मायने में तभी बनाना सार्थक होगा जब हम उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से मानेंगे, हम लोग सफाई करें, महिलाओं उद्धार करें। एक बार मैंने पिक्चर देखी थी गांधी जी की, तो उसमें यह था वो ट्रेन से जा रहे थे, नदी के किनारे एक महिला निर्वस्त्र थी, उन्होंने अपना जो वस्त्र था वो नीचे फेंक दिया। कहने के तात्पर्य गांव-गांव घूमते थे वे कि देखते थे जब तक हम लोगों को नहीं जानेंगे, बिना लोगों को जाने हम लोग नीति नहीं बना सकते। इस प्रकार से गांधी जी ने चाहे महिलाएं हों, चाहे वह दलित हों, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह राजनीतिक हो, हर एक पर उन्होंने अपना काम किया। चंपारण नील का देखिए उदाहरण था, उन्होंने कैसे उसका आंदोलन किया और अंग्रेज़ों को कैसे भगाया। तो आज गांधी जी के जो विचार थे वे हम सब लोगों को आत्मसात करना पड़ेगा। केवल जयंती माला फूल चढ़ाकर ही हमें
इतश्री नहीं करनी है। उनके विचारों को हमें अक्षरशः मानना होगा, व्यवहार में लाना होगा, तभी हमारा समाज, गांधी जी का समाज आज जो सपना देखा था स्वराज का वह पूरा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Gratitude is the healthiest of all human emotions. A very big thank you to all the staff members of KV Air Force Station Tughlakabad, second shift, and the lovely students who in this challenging period put in their best efforts to make the celebration of 150th birth anniversary of Father of Nation Mahatma Gandhi a big success. Mahatma Gandhi's birthday is not only celebrated in India, but it is celebrated worldwide as International Day of Non-Violence. Swachh Bharat Abhiyan and Fit India movement were two of the most important programs among so many others which were taken by Government of India as an integral part of this celebration. Even in our school, we took up all the programs and they were all celebrated, they were all completed with great zeal by the students and the teachers. I cannot thank everyone enough by name for their willingness and involvement to take on completion of this celebration beyond their comfort zone. But yes, you all deserve a big round of applause because without your cooperation, this 2-year-long celebration could not have been possible. On behalf of respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am and myself, I thank one and all a big thank you everyone. Thank you very much.